Thank you so much, Hitanshi. Welcome to all my eminent guests on the stage. Good evening to everyone. We have had a very long session today on healthcare sector, and we have already talked about the integrated and holistic healthcare, which are very important for the healthcare sector of India. We also talked about how health and fitness are important. आप क्या खाते हैं, आप व्यायाम करते हैं कि नहीं करते हैं, आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, आप होम्योपैथी में विश्वास करते हैं या फिर आप पैरासीटामोल खाते हैं बुखार होने पर आप कुछ भी कर लीजिए, बीमार तो आप पड़ेंगे ही। और जब आप बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये जो सेशन है, इस सेशन की महत्वपूर्णता यही है, हाउ इंडिया शुड गेट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर, और आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी है इस देश के लिए। क्योंकि जब कोविड-19 आया तो हम सभी ने देखा कि देश में छोटे लेवल पे ही सही एक शुरुआती एक क्योस था, लोगों के बीच में डर था, धीरे धीरे सरकार ने काम किया, वो क्योस दूर हुआ। बट कोविड-19 ने हमको एक्सपोज किया कि हमारी हेल्थ केयर सेक्टर में क्या कमियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। एंड आई एम fortunate to have a very good panel to discuss not just the challenges but also the opportunities in the healthcare sector. Ruby ji, I would like to start with you. You have a 3 decade of experience in the pharmaceutical industry. You are the one who has seen it growing from the very grassroots. Do you think that we are now slowly approaching towards an Atmanirbhar Bharat when it comes to pharmaceutical industry? Yes, we are approaching towards Atmanirbhar Bharat very steadily, very gradually. हम बहुत अच्छे से, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो मेजरली हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जो पेशेंट ना तो गवर्नमेंट सेक्टर से है, ना वो इंश्योर्ड है, और ना ही किसी भी योजना के अंतर्गत आता है, और उसको अपना बहुत सारा पैसा अपनी हेल्थ केयर पे या अपने परिवार की हेल्थ केयर पे लगाना पड़ता है। मैं डाटा से बात करता हूँ कि अगर आज से 15 साल पहले की बात करें तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस थे, ये करीबन 60-65% से भी ज़्यादा थे। मगर आयुष्मान भारत जैसी जो हमारी योजनाएं हैं, उसके माध्यम से ये साल दर साल नीचे आ रहा है। हालांकि हम दुनिया के आउट ऑफ एक्सपेंसेस के साथ अगर कंपेयर करें तो आज भी हम बहुत ज़्यादा हैं। वी आर अराउंड 40 to 45% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हम करते हैं, मगर दुनिया में 12% है। अगर हम अपने पड़ोसी श्रीलंका की बात करें तो वो 30% पे है। अगर हम चाइना की बात करें तो वो 30% से नीचे है। चाइना से मैं इसलिए अपने आप को रिलेट करता हूँ क्योंकि जब भी हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी पॉपुलेशन है, जो कि चाइना की भी है। तो अगर चाइना 30% से नीचे आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं, और हम धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बात करेंगे तो और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Definitely, sir. Dr. Mehta, since you have had the experience of practicing medicine both in the US and in this country, how do you see the difference between the healthcare system of the two countries? Because whenever there is a problem in the country when it comes to healthcare, we keep on comparing ourselves either with the US or the NHS of UK. So how do you see these two countries? Are we performing better, or should we learn something from other countries when it comes to healthcare sector and becoming Atmanirbhar? Hi, thanks for having me today. I'll break it down into multiple points. आपने बोला US versus India healthcare. This is an apples to oranges comparison. रूबी जी का जो point था is our population. First is US healthcare is a $5 trillion economy being spent on about 300 million people. Indian healthcare is a 600 billion economy being spent on 1.4, 1.3, whatever number you take, billion people. So it's not an even comparison. Having said that, you have to wait about 2 months to see a specialist in US, almost 6 to 8 weeks to complete a routine procedure. Same with the NHS, same with different systems across the world. In India, that is not the case. We are still
fairly accessible. Yes, we have a skewed, proportion of hospitals in urban versus rural population, where 70% of beds are more skewed towards the urban population. But still, I think we are doing a remarkable job, given the population constraint that we have. Uh, we have access to the latest technology. We have and we can unpack this in many ways, whether it's accessibility, whether it's affordability. But I think it's an apple to oranges comparison. I, having seen both, I would fly back to India for my healthcare, even though I still practice for the US. Why do you say that? I'll share a personal example. Few weeks ago, close family member got diagnosed with cancer. From diagnosis to surgery to post-surgical care was 5 days. 5 days. Now, agreed, I am in a urban setting, I'm in Mumbai, things are more accessible to me, I'm a doctor. 5 days could have become 15 or 20 days. In the US, this would have easily been 3 months, first. Second, they use the same equipment and the same treatment protocols that they would have used in the US. So India is progressing. We are doing well. Our constraint remains the population, remains scaling up healthcare infra. I think pharma has already hit it out of the park in terms of being affordable and accessible. Medical devices and manpower has to now follow. That's the next evolution of Indian healthcare. Absolutely. Dr. Shah, as we talked about US and China, चाइना की मोनोपोली अभी भी फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा है और वो हमने कोविड-19 के ड्यूरिंग देखा भी था कि चाइना अभी भी मार्केट पे रूल करता है. सो हाउ आर वी गोइंग टू मिटिगेट दिस चैलेंज, द चैलेंज ऑफ चाइना? Ayurveda and Chinese medicine, both are the part of complementary medicine under the umbrella of CAS, complementary alternate medicine in the world. And basically, what we believe that Ayurveda is more popular even in China. So right now, Atmanirbharta in a traditional medicine, that is our goal, not to increase the pharmacies, not to increase the formulation, or not to increase the production of medicine. That is not only the aspect. The aspect is less need of medicine, less need of doctors, and more healthy society. That is the basic need. Chinese medicine क्या है कि हमसे आगे है, दुनिया में आगे है, not in the production value. Chinese medicine आपने ज़्यादा मार्केट में नहीं देखी है. I'm traveling more than 33 countries to teach Ayurveda. 33 कंट्री में मैं आयुर्वेद पढ़ाता हूँ. मैंने अभी तक चाइनीज मेडिसिन मार्केट में ज़्यादा बिकती नहीं दिखी है. बट व्हाट आई फेल्ट, व्हाट आई सॉ ऑल ओवर द वर्ल्ड कि चाइनीज मेडिसिन की प्रैक्टिस, फंडामेंटल प्रैक्टिस वो ज़्यादा हो रही है और उसमें डेटा कलेक्शन है, उनके पास एविडेंस है जो हमारे पास लैक है. अदरवाइज आयुर्वेद प्रैक्टिस आज पूरी दुनिया में चल रही है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फार्मेसी. मेडिसिन का बात एक अलग है, मेडिसिन फॉर्मुलेशंस, R&D, क्लिनिकल ट्रायल्स, वो सब एक अलग फॉर्मेट है. और किसी भी एक ब्रांच को दुनिया में पॉपुलराइज करना, तो उसके पीछे सिर्फ मेडिसिन नहीं है, उसके पीछे टेक्निक्स भी है, उसके पीछे सिद्धांत भी है. आज एलोपैथी मेडिसिन पूरी दुनिया में छा गई है. क्यों? कि उनकी एक प्रैक्टिस का सिद्धांत है, उसकी एक स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्क है. तो वो भी ध्यान में रख के आगे हम बात करेंगे. आगे मैं आपको ज़्यादा इनपुट दूंगा कि कैसे आयुर्वेद में इंडिया आत्मनिर्भर कैसे है और पूरी दुनिया को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं. रूबी जी, जब मोनोपोली की बात होगी तो पेटेंट्स की भी बात होगी और यूएस आज भी पेटेंट्स के मामले में भारत से बहुत बहुत आगे है, चाहे वो R&D हो, चाहे वो पेटेंट्स हो. हमारे देश में R&D का जो फार्मास्यूटिकल का जो R&D है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं होता है. और दूसरी बात यह है कि यूएस में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर इन्वॉल्व है R&D में. तो पेटेंट और R&D की जो ये पूरी लड़ाई है, इसके अंदर भारत आत्मनिर्भर बनते हुए इस लड़ाई को कैसे जीत सकता है यूएस से? जो ये पेटेंट की दुनिया है और जो रियलिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है. अगर हम हेल्थ केयर की अफोर्डेबिलिटी की और एसेसिबिलिटी की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब विल अग्री विद मी कि whatever available to us today in pharmaceutical is quite enough to handle our all the problems.
We have not to concentrate and discuss too much on the patents. Yes, patent is important. If Americans are getting patents nowadays, our Indian scientists are also going shoulder by shoulder, and we are getting so many patents. Indian companies are now the much sought after companies in the world, right? तो अगर हम कंपैरिजन करें कि पेटेंट से जो आज मेडिसिन आ रही है, जो लेटेस्ट आ रही है, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है, शायद अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो 95 और 5% के बीच में आएगी. And looking at our population, looking at our facilities, looking at our resources, we have to focus on what 95% we are already having. And we can make that, and we are already making it the most cost effective healthcare. Medicine में आज Indian manufacturers of pharmaceuticals are providing the most economical medicines in the world. अगर मैं अपने immediate पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान की बात करूं, तो जो टैबलेट हम यहाँ पे 10 रुपए की बेचते हैं, वो श्रीलंका में 60 रुपए की है, पाकिस्तान में 100 रुपए की है. तो हमें we have to look at our own strengths rather getting into too much of the fancy things and too much of the what is not much relevant. You got my point? So we will compete with the patents also, but our focus should be on the existing resources which are enough to handle our problems. Right, Doctor? आई फुली एग्री. आई ऑल्सो से, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हम अहमदाबाद में हैं, गुजरात में हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, CDMO, क्रैम्स, सबका ये हब है बिटवीन अहमदाबाद एंड बड़ौदा. एट द सेम टाइम फार्मा में वी आर ऑल्सो मूविंग टू पैटेंट्स. कंपनीज, एक चंडीगढ़ की कंपनी है जहाँ से रूबी जी है, यहाँ एक बॉम्बे की कंपनी है विच इज़ अ ग्लोबल कंग्लोमरेट. वी आर रेडी टू फाइल 5 new novel drugs that are going to come out in the next 6 months for specifically for antimicrobial resistance. This was byproduct of push by the government, where we have started focusing on antimicrobial resistance now. Similarly, as we focus on R&D, as we focus on biosimilars, pharma will continue to grow. I will repeat that medical devices, the quality of medical education, the research as a subject of medical education needs to catch up. Since you talked about medical devices, अभी एक हफ्ते पहले ही MR finally India made its own MRI. Why is it taking us so much time to get there? A, and B, if everything is, it's getting positive, if we are slowly moving towards betterment, then why there are still challenges, especially when it comes to making devices? So one word answer is environment. Long answer is I'll start with an example. I'm a radiologist. I was at the Cleveland Clinic. So, we would go to the Philips headquarters. They would show us latest developments. तो मैं एक बार गया, हम लोग 4-5 का ग्रुप थे, and I ended up meeting 2 very senior scientists, and I asked them, sir, आप कहाँ से पढ़े हो? दोनों इंडियन थे. One said IIT, the other one said another, I think IISc or some institute from Bangalore. And I was quite shocked, and I said, this level of research and this level of activity that you're doing here, did you ever try in India? They said, oh yes, our thesis paper was in the same subject, we tried. And then so I asked them, what is the secret sauce? Why are Americans, why is the West able to take you from India, use your knowledge that you gained in India, and come out with commercially successful and life-saving products? He said it's just the environment. They are willing to spend on R&D. They are willing to support failures. They are willing to invest in education. उनकी सोच थोड़ी, they are playing the long game. जो यहाँ हम, and I don't think we are to blame. We were also a country, we've recently gained independence. We are coming out of a period of scarcity. Our priorities were different for the first 2 generations, 3 generations. I think now we can start looking forward. And I'm excited for what the future holds, given that we've just come out with our first MRI. Dr. Shah, would you like to add something to it? एक फनी सिचुएशन यहाँ पर है कि जब बात आती है मॉडर्न मेडिसिन की, तो हम यूएस के साइड देखते हैं कि भाई नया डेवलपमेंट क्या है, वहाँ से क्या आ रहा है, नया मोलेक्यूल क्या मिल रहा है, R&D यूएस में होता है, फिर हमारे यहाँ आएगा.
जब बात हम आयुर्वेद की करते हैं तो पूरी दुनिया हमारे सामने देखती है। दोनों आगे वाला जो क्वेश्चन था उसका भी और इसका दोनों का मैं आपको एक मेंशन करूंगा यहाँ पर। नया जो फार्मेसी कोर्स है, बीफार्म कोर्स, आई एम द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एडवाइजरी कमिटी टू द सिलेबस कमिटी इन द एलजे फार्मा कॉलेज, और हम फार्मा कॉलेज में इनको आयुर्वेद सिखाते हैं। आज ये हालत है कि हर साल इनोवेशन सेंटर्स में कम से कम 40 से 50 नए स्टार्टअप फार्मेसी के, मॉडर्न फार्मेसी में बच्चे आयुर्वेद की प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। पूरी जगह ये है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ आई हब, KCG, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी प्रमोट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। हर साल कम से कम मुझे 30 या 40 नए स्टार्टअप मिलते हैं आयुर्वेद में, कि जो नई दवा, नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, नई सर्विस लेकर आते हैं। बात करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट की। अब ज़्यादातर तो आपको लोगों को मालूम भी नहीं है कि आयुर्वेद में भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हमारे यहाँ भी ट्रीटमेंट में हर अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? ये तो है नहीं कि हम 5000 साल पुराने ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हालांकि एक बात ये भी सच है कि सुश्रुत ने 3000 साल पहले जो इंस्ट्रूमेंट बताए थे वही इंस्ट्रूमेंट आज हम सर्जरी में यूज़ कर रहे हैं। आज की अल्ट्रा मॉडर्न सर्जरी में भी इंस्ट्रूमेंट तो वही है कि जो 3000 साल पुराने थे, सुश्रुत ने डिज़ाइन किए थे। लेकिन नए जमाने के जो इंस्ट्रूमेंट है आयुर्वेद में भी, जैसे समझो कि नाड़ी परीक्षा, तो हम सबको मालूम है कि आयुर्वेद वाले नाड़ी देखते हैं और पल्स डायग्नोस करके ही आगे बढ़ते हैं। तो नाड़ी के मशीन्स आज अवेलेबल है, और इंडियन आयुर्वेद डॉक्टरों ने कम से कम 3 या 4 अलग अलग नाड़ी मशीन बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी यूरोप में भी एक आयुर्वेद नाड़ी मशीन बनाया है, रशियन ने भी आयुर्वेद नाड़ी मशीन बनाया है, और अमेरिका में तो 2D कलर डॉपलर यूज करके भी आज नाड़ी देखते हैं। तो पूरी दुनिया इंस्ट्रूमेंटेशन की जब बात आती है तो आयुर्वेद की या हमारी जो मेडिसिन है, हमारी इंडियन जो है सिस्टम, उसके मशीन बनाने के लिए भी आज लगी हुई है। शिरोधारा का पोर्टेबल मशीन इंडिया में किसी ने सोचा नहीं था कि शिरोधारा करने के लिए तो आपको एक पूरा 6 फुट लंबा टेबल चाहिए, उसके ऊपर पेशेंट को लिटाकर उसके सर पे धार करनी है। 30-40 मिनट पर धार करते रहेंगे तेल की, पूरा रूम खराब होता है। उसका पोर्टेबल मशीन स्विट्जरलैंड में बना। तो आयुर्वेद में नया डेवलपमेंट, नया जो कुछ भी R&D है, स्टार्टअप है, इनोवेशन है, उसकी हमें भी ज़रूरत है। आज ये प्लेटफॉर्म ये भी है कि हम आयुर्वेद को पूरी दुनिया में देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम पूरा आत्मनिर्भर आयुर्वेद में भी है कि नहीं, वो भी मेरा तो एक प्रश्न है। Absolutely. Let me introduce to one of our panelists here, Shri Uday Mahurkar ji. Mahurkar sir is a veteran journalist. He has written a lot of books. He has also a take on mental health. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच पे. Uday ji, if we talk about especially about mental health, तो mental health के फील्ड में भारत अभी कहाँ पे है? हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? क्योंकि आज भी जब हम बात करते हैं कि इफ़ यू टॉक अबाउट टेकिंग थेरेपीज, कि हमको अगर कोई दोस्त आके मुझे बताता है दैट यू नो आई हैव बीन क्राइंग फॉर डेज नाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई अर्न वेल, आई बीन ईटिंग वेल, आई हैव फ्रेंड्स, आई गो आउटसाइड, बट आई कम होम एंड आई डोंट फील गुड. For some reason, I'm still stuck there. So, where India has reached in terms of healthcare, in terms of mental health, what would you say? देखिए, हम बड़े जोर शोर से फिट भारत की बात कर रहे हैं। फिट भारत के चिन्ह भी हमें दिख रहे हैं। जो फिजिकल अवेयरनेस है उसका लेवल काफी बड़ा है। उसमें स्वामी रामदेव जी से जो योगाचार्य हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक जो मुद्दा है जिस पे डिबेट बिल्कुल नहीं हो रही है, जो सब में अहम मुद्दा है देश के लिए, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ का ये खतरा क्यों हमारे सामने आया है, इसके अंदर जाने को कोई तैयार नहीं। मैंने आज से 3 साल पहले देखा कि जो बलात्कार हो रहे हैं स्लम्स के अंदर और जगह पे, वो ज्यादातर बलात्कार अश्लील जो सामग्री आती है फोन पे, उससे प्रभावित है। मैं मानता हूं कि ये भारत का सब में बड़ा खतरा है। अभी मैं 2-4 एग्जांपल आपको दूंगा। एक ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, उसके आंकड़े आए बीच में आंध्र प्रदेश में।
एक साल में 220 वहां बलात्कार हुए, उसमें से 80% बलात्कार करने वाले 18 साल के नीचे के लड़के थे। वो सभी पोर्नोग्राफी को देख के बलात्कार कर रहे थे। तो अश्लील सामग्री, परवर्टेड कंटेंट, पोर्नोग्राफी, ये हमारा सब में बड़ा चैलेंज है। अगर हम इसमें गहराई में उतरते तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैंने के ऊपर से कुछ काम कर लिया और आपको बता रहा हूं मैं। मेरा सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन इस मुद्दे पे करीबन 3.25 साल से रिसर्च कर रहा है। रिसर्च में हमने प्रूव कर दिया है कि 80% जो बलात्कार हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट विमेन, वो अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, वो हो रहे हैं पोर्नोग्राफी को देख के, क्योंकि ये फोन पे अवेलेबल है। ये मतलब आप समझो कि आप अगर जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, उनको आप अगर उनकी तहकीकात करोगे तो ज़्यादातर समय लोग इसके ज़्यादा बिताया करते हैं इन सब सामग्री को देखने में। पर क्या उदय जी, ये जो पोर्नोग्राफी या फिर पॉर्न देखने का जो एक जो मानसिकता है, क्या ये भी एक मेंटल इलनेस में ही आएगा? ये ठीक है, मानसिकता का सवाल नहीं है। ऐसा है कि अगर कोई 10 साल से 30 साल का आदमी है या 25 साल का है, अकेले में अगर उसके फोन पे आएगा तो आप कितने भी उसको संस्कार दो, वो 90% वो देखने ही वाला है अगर अकेले में उसको फोन पे आता है। और ये तो फोन पे आया ही करता है। अभी 900 OTT प्लेटफॉर्म से देश में 800 इस टाइप की सामग्री परोस रहे हैं। और इतनी खराब है वो तो, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर बहू का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्में आती रहती है। अभी एकता कपूर का ऐप अभी बैन किया सरकार ने कई साल। वो मेरी कंप्लेंट थी। वो क्या दिखा रही थी, घर में एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, जिसके व्यभिचारी संबंध उसकी दादी के साथ हैं, उसकी सौतेली की माँ के साथ हैं, उसकी भाभी के साथ हैं, उसकी चचेरी बहन के साथ है। मैं मानता हूं ऐसे लोगों की जगह जेल में है, ऐसे लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं है। और ये पूरा जो खतरा खड़ा हुआ है, इसका मूल कारण ये है, इसमें कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, इसके अंदर बॉलीवुड भी एक मेन इसके अंदर वो है। बॉलीवुड एक अभिनेत्री है, हाँ, हर जगह आ जाती है, वो हिंदुत्व के मूवमेंट में जुड़ जाती है। उनके पति क्या कर रहे थे? पोर्नोग्राफी परोस रहे थे, बच गए। तो सन्नी लियोन पॉर्न एक्ट्रेस थी, लीडिंग अमेरिका की, वो यहाँ के मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बन गई। that is something we need. सलमान खान उससे गले मिल रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों को लेजिटिमेसी नहीं देना है। मैं अब आ रहा हूं इसके सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। 2 AI के एक्सपर्ट मेरे पास आए थे, AI के। उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप क्यों इतना सब कर रहे हो? सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। सरकार में और लोगों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसने कहा मुझे कि अगर सरकार एक नया कानून लेके आती है और ये कहती है कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स को, जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन आइडिया को, MTNL को, ये कहती है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन से एक भी अश्लील चित्र नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है AI के उपयोग से। तो इसमें आपको यह सोचना है कि जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, इल्तुतमिश और कई जो हो गए आक्रमणकार, इन्होंने जो नुकसान नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान ये लोग कर रहे हैं। वो हमारी संस्कृति निपटा नहीं पाए। अब ये परिस्थिति है कि हमारी संस्कृति, मेरे तो मानता ही हूं कि कुछ सालों में निपट जाएगी, क्योंकि ये अंदर से ही चल रहा है बिल्कुल। और स्लम्स में देखिए, मैं एंटी रेप एक्टिविस्ट को भी मिलता हूं। एक योगिता भयाना करके एंटी रेप एक्टिविस्ट है, थोड़ी कांग्रेस माइंडेड है, मेरा आइडियोलॉजिकल उनसे बिल्कुल मल मिलाप नहीं है, लेकिन वो एंटी रेप एक्टिविस्ट अच्छी हैं। उन्होंने मेरे सामने एडमिट किया कि उदय भाई 80% बलात्कार इसको देख के हो रहे हैं। फिर हमारी प्रतिभा देसाई करके बीजेपी की वर्कर है, सूरत की, एंटी रेप बहुत अच्छी एंटी रेप एक्टिविस्ट है। उन्होंने भी कबूल किया कि 80% नहीं, वो तो बोलती है 90% बलात्कार इसको देख के हो रहे हैं। उदय जी, हम उस विषय पे आएंगे, बट since he talked about AI, and AI in healthcare is the newest feature that we have. Last month only in India, in Delhi, we had AI Impact Summit, and we saw a lot of innovation when it comes to healthcare, new innovations. Dr. Mehta,
I would like to ask you this question that how AI is going to help us in getting better and affordable healthcare in the coming years. Since India is comparatively new in the AI sector, so how do you see AI playing a role when it comes to healthcare in India? I'll have the same question for Ruby ji and Dr. Shah as well. India is new in the AI sector, but Indians are not. We've built a lot of the skeleton and the architecture abroad. So getting that to India is going to be an accelerated process. Radiology is being disrupted at a very fast pace when it comes to AI. I know there is AI in drug discovery, which Ruby ji will say AI is bringing back a lot of lost Ayurvedic principles to us by combing through ancient texts. In medicine, what you will see is improved diagnosis, correlation of symptoms. आप देखेंगे कि रिसर्च को बहुत इम्पेटस मिलेगा AI से. आई एम लुकिंग एट AI एज अ डबल एज स्वॉर्ड में पॉजिटिव्स आई फील ज़्यादा है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ ग्रोइंग सो मच. नेगेटिव्स ये है दैट द परसेप्शन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मे कम डाउन. पीपल मे थिंक दैट यार सब AI ही कर रहा है तो डॉक्टर की ज़रूरत क्या है, मैं ChatGPT में डाल दूंगा मुझे मिल जाएगा, फार्मेसी के पास जाऊंगा दवाई ले लूंगा, यहाँ से टेस्ट मंगवा लूंगा. So that is where I see this being a double-edged sword. Ruby ji? अगर हम अपने मेन मुद्दे अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी की बात करें तो जब आप AI की बात करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपका ध्यान एक बहुत ही बेसिक फैक्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम है. We have to recognize, we have to accept our good also. We have not to be always critical about these things. हमारे पास सबसे नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज हैं. उसके ऊपर हमारे पास सिविल हॉस्पिटल्स हैं और फिर हमारे पास जनरल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस हैं और फिर हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड PGIs हैं. अब जब हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं और जब हम टेक्नोलॉजी के यूज़ की बात करते हैं तो हमें एक स्थिति को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे बताया गया कि यहाँ पे, और मैं जानता भी हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीति आयोग लोग के लेवल तक बैठते हैं, तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और मेडिकल स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. एक बहुत बड़ी विडंबना है कि 70 से 80% भारत रूरल में रहता है और 80% डॉक्टर्स शहरों में रहते हैं. सो इट्स अ बिग गैप, राइट डॉक्टर साहब? एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड. यस, यू कैन क्लैप इट नाइसली. थैंक यू. अब यहाँ एक और विरोधाभास है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं कि टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, जो हमारे PGIs हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और हमारे एम्स हैं, वो क्लॉक्ड अप हैं, वो उसमें इतना रश है कि डॉक्टर चाहकर भी वहाँ बहुत कुछ जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहे. उसका कारण क्या है कि जो हमारा नीचे का सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वो हमारा अनयूटिलाइज्ड है. आप देखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको 9 लोगों का स्टाफ बैठता है जिनकी मंथली कीमत 9 लाख रुपए है. मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, आप इक्विपमेंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट 9 लाख रुपए है. मैंने हरियाणा में काम किया था जब नड्डा साहब ने अफोर्डेबिलिटी के ऊपर स्टेट लेवल के ऊपर कमेटीज़ बनाई थी. तो जब मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब से पूछा कि कैन यू गिव मी द प्रो राटा कॉस्ट ऑफ द OPD ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर साहब, you will be surprised, it is more than 1,000 rupees. We are spending 9 lakh rupees at a PHC and we are not getting 500 patients in a month. Realization नहीं है उसका. Right? सो जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे हम बहुत सारा बेसिक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ डॉक्टर्स को ऐसे लगता है जैसे वो
एक पनिशमेंट पोस्टिंग के ऊपर है, राइट? तो वहां का जो पेशेंट है जिसको एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो भी कहाँ भागता है? वो टर्शरी केयर सेंटर में भागता है। वो कहाँ भागता है? वो मेडिकल कॉलेज में भागता है। आप एम्स में जाकर देखिए, एम्स में लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी आ जाते हैं। वो ट्रैवल पे भी खर्चा करते हैं, वहाँ पे रहने पे भी खर्चा करते हैं, और दवाइयों पे भी खर्चा करते हैं। तो हमारी अफोर्डेबिलिटी तो वहीं बीट हो गई जहां हमने असेसिबिलिटी को बीट कर दिया। मेरे घर पे, मेरे गांव के आसपास मुझे जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, उस फैसिलिटी पे मेरा यकीन नहीं है। वहाँ पे मेरे को जब ज़रूरत है तो डॉक्टर नहीं है, तो मुझे भागना पड़ता है। यहाँ पे आती है आपकी बात AI की टेक्नोलॉजी की। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि AI इज़ अ डबल एज सॉर्ड इन केस ऑफ मेडिकल। मेडिकल में अगर मैंने AI से कुछ मांगा और उसने मुझे थोड़ा सा गलत कुछ बता दिया, तो इट इज़ पुटिंग माई हेल्थ ऑन रिस्क, इट इज़ पुटिंग माई loved one's health on risk, right? So what is the alternative? With the help of AI, we have to strengthen our telemedicine system, where a junior doctor is sitting at a primary health center and connecting to a specialist at the state level or a district level and communicating. Like if you go to a doctor, if you go to a senior doctor, to a professor, first you have to meet a junior. There you explain, he will take your all the history. And that is what we do in telemedicine also, where there is a less trained, less qualified person, but trained for a purpose is there, and he is describing it to the doctor. In place of doctor rushing to that rural area, to that foreign area, the doctor is providing you the alternative. So there we have to bring AI and telemedicine together, and then we can do wonders in that. Thank you. Dr. Shah, you have been practicing Panchakarma for the past 37 years, and you were the first one to introduce Panchakarma in Gujarat. For many people, probably Ayurveda and AI, they don't relate for them. उनको लगेगा कि AI और Ayurveda का क्या लेना देना है. So what you think, how they are interrelated, and what role AI will play in making Ayurveda better? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बताया गया कि यहाँ पर ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट है, ज़्यादातर है। हैव यू हर्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन? वेरी फ्यू। मतलब कॉलेज में अभी तक ये डिस्कस नहीं हुआ है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। आपको सिखाया गया है कि भाई पैरासीटामोल देना है तो पैरासीटामोल की टैबलेट अवेलेबल है 500 मिलीग्राम की, डोलो अवेलेबल है 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल। कोई एक मेडिसिन कॉम्बिफ्लम अगर दे दिया तो पैरासीटामोल प्लस आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन है 400 मिलीग्राम प्लस 200 मिलीग्राम। लेकिन आपके पेशेंट को 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल देना है या 400 मिलीग्राम, कौन नक्की करेगा? आइबुप्रोफेन का डोज कौन नक्की करेगा कितना चाहिए? तो ये पूरी दुनिया में, ये वेस्टर्न मेडिसिन में ये कंसेप्ट हो रहा है, आपका नहीं है, इंडियन का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। दुनिया में हर एक डॉक्टर ये क्वेश्चन आज कर रहा है कि मेरे पेशेंट को सही मात्रा में कितना कंटेंट जाना चाहिए। अब एक मजेदार बात बताऊं, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अब्रॉड 2000 की साल में, तब मुझे ये बोला गया था कि ये आयुर्वेद वाले आप लोग बात में कहीं डिफरेंट बातें करते रहते हो, कोई पेशेंट की आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, किसी का डोज ठीक नहीं है, आप हर एक पेशेंट की दवाई अलग अलग बता देते हो। क्योंकि आयुर्वेद में तो बताया है कि हमें वय दोष देश प्रकृति विकृति बल साथ में, वो जो हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मेरे पास कोई एक पेशेंट अहमदाबाद में कोई एक डिजीज़ की ट्रीटमेंट मांग रहा है और वही पेशेंट जाकर बॉम्बे में पूछेगा कि वहाँ पर क्लाइमेट अगर अलग हो गई तो मेरी दवाइयाँ भी अलग हो सकती है, मेरा डोज भी अलग हो सकता है। तो मेरी तो हर एक बात पर्सनलाइज थी। तो 2000 की साल में मुझे हंसा गया था कि ये तो बेकार है, आपका तो कोई स्टैंडर्डाइज ही नहीं है। हमारा तो पूरा देखा जाए तो पूरा स्टैंडर्ड है, हम तो हर एक ट्रीटमेंट के एक स्टैंडर्डाइज डोज में देते हैं, स्टैंडर्डाइज मेडिसिन देते हैं। आज 25 साल में दुनिया बदल गई, दुनिया पूरी बदल गई है। अब आज एक एक चीज़ में इंडिविजुअलाइज्ड बात हो रही है, पर्सनलाइज्ड बात हो रही है।
तो वहाँ जाकर आयुर्वेद की जब बात करते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एआई का यूज़ आयुर्वेद में होने वाला ही है, होता भी है। क्योंकि हमारे पास तो क्या है कि एक एक चीज़ को, एक आदमी की उम्र क्या है, वय, देश, कहाँ पर बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, कोल्ड क्लाइमेट में हो, हॉट क्लाइमेट में हो, वय, देश, दोष, प्रकृति, विकृति, बल, साथ में वो 10 भाव देखना है, बाद में दवाइयाँ नक्की करनी है, दवा का डोज नक्की करना है। तो वहाँ जाकर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर साथ मिलता है, तो जो आयुर्वेद की क्वालिटी की है, वैद्य की क्वालिटी है, वो क्वालिटी बढ़ेगी। और जब क्वालिटी वैद्य की बढ़ेगी तो पूरी साइंस की एक ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगी। ये हाल है कि यहाँ के अगर मेडिकल स्टूडेंट को पर्सनलाइज मेडिसिन मालूम नहीं है, तो आयुर्वेद के स्टूडेंट को आज तो एआई का यूज़ भी मालूम नहीं है। लेकिन ये हमें लाना ही पड़ेगा, एआई आयुर्वेद में आएगा। और आज भी आपको शायद मालूम नहीं है, यूरोप, यूएस, लैटिन अमेरिका पूरा कवर मैं करता हूँ, हर जगह पे पोस्ट ग्रेजुएट इन आयुर्वेद का 3 साल का कोर्स चलता है कॉलेज में। एमडी होने के बाद 3-3 साल वो लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं। तो ये डॉक्टर एआई की मदद से अगर आयुर्वेद पढ़ेंगे तो पूरा इंडिया का नाम रोशन होगा। डॉक्टर मेहता, हेल्थ की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वी हैव द बेस्ट ब्रेन्स, we have the best people around us, the best doctors in the world are Indians. You yourself, you went to US for your education. So how to mitigate this challenge, how to fight this challenge of healthcare security, how to make sure that our people, our doctors, our best brains don't go outside? Because if we have to make healthcare affordable and accessible, we have to make sure that we have those many doctors in the country, because we don't have. We have we have new hospitals over here, we have medical colleges, but then there is nobody to teach. So that factor is very important. Please give your opinion on that. यहाँ कितने छात्र मेडिकल स्टूडेंट्स है या मेडिकल में जाने वाले हैं? डू you have a good percentage? There are few. In terms of healthcare security, I'll break it down into 2 parts. One is the commercial side of it, one is the manpower side of it. Commercial, we saw during COVID that pharma was great, the API chain broke, we augmented that chain, that worked out. Devices में हमें अभी भी 80% हम लोग import करते हैं, उसको improve करना है, पर उसके तरफ PLI स्कीम आई है, इतने सारे डिवाइस पार्क्स आए हैं, लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें हो रही है, सो दैट इज़ हैपनिंग. थर्ड इज़ दिस फ्यूचर दैट इज़ सिटिंग हियर, द मैन पावर, the people who are going to do it. So I would say this is the good part of AI. AI से डरना नहीं है, AI का उपयोग करना है, AI को सीखना है, क्योंकि आप जो दिन में 50 पेशेंट देखते थे, you will be able to see 150 and safely. I'm not saying that it will be reckless. There will be a lot of triage, आपके patients filter होके आएंगे. There will be predetermined treatment plans and even personalized treatment plans that will be suggested to you, which you will ratify. So your efficiency is going to go up. आप इंडिया में हैं, you are at a perfect confluence of old world, new world, the future that is coming. Everything is available to you. In terms of healthcare security and healthcare education, yes, my biggest grouse with Indian medical system has been, कहीं भी आप वर्ल्ड में जाइए, जो सबसे हाई परफॉर्मर रहते हैं, जो सबसे हाई अर्निंग होते हैं, those are your professors. मैं जो भी हूँ is because of my teachers, is because of people who taught me medicine, who inspired me to be a caring physician, to do better. India में unfortunately that is not the case. We have an inverted pay structure for our teachers. Teachers make doctors. Doctors do not make teachers. We need to augment our educators and our teachers and select the best brains to train the future generations. नहीं तो ये जो थोड़ा जो डीके चालू हुआ है, वो हम उसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे और हम एआई का ये लाभ नहीं उठा पाएंगे, बिकॉज एट द हार्ट ऑफ मेडिसिन इज द ह्यूमन हार्ट, द ह्यूमन माइंड. इट इज the compassion and the dignity that you give your patient. Since we are running a little short on time, I'll quickly take the last question. And this question is for everyone. When it comes to policy matter, what can we do to improvise healthcare sector in India? I'll start with Udayji. A lot of things are being done. But if we change our approach, there has to be a nation-first approach amongst the policymakers. You have to imagine, for example, doctors.
uh, they get subsidized medical education, correct? But they are not willing to work in villages. I think there has to be a clear message that a person who is becoming a doctor, he will have to spend minimum time in village. That is one, correct? Secondly, as I told you, nation first approach only can make us realize as to which are the areas in the health sector where we can improve. We have come with Ayushman Bharat. It is doing a good job, you know. But then there are many areas where we can improve. I think health education has to go, healthcare has to go to every citizen of this country. We have taken it to a great extent, you know, especially in the last 11 years. But much more needs to be done, and for that, there has to be a policy-based approach, which is based on, again, I am saying nation first. Policy-based approach based on nation first. Dr. Shah. One word only, integration. It should be integrated medicine. And that is the future of health. Ruby ji, your take. How to improvise? How to? How to improvise the healthcare sector of India? मैं 2-3 सवाल पूछता हूं, उसके जवाब में अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, उसको हेड कौन करते हैं? आईएएस ऑफिसर्स। एंड मोस्ट ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स आर नॉट डॉक्टर्स, राइट? सो द पॉलिसी मेकर्स लैक डीप डाउन नॉलेज, राइट माय डियर फ्रेंड्स? अब हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, हमारे यहाँ इंडियन पोस्टल सर्विसेज हैं, हमारे यहाँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं, इंडियन पोस्टल सर्विसेज हैं। मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, वो वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, आईएफएस थे, राइट? और अगर मैं इंडिया के लेवल पे जाकर ना बात करूं और स्टेट के लेवल पे हेल्थ सेक्रेटरीज की बात करूं, तो वो लोग भी जो आईएएस ऑफिसर्स हेल्थ में आते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशंस में नहीं पाते हैं। दे आर जनरली नॉट हैप्पी विद द पोजीशंस। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, हमारे बहुत सीनियर लीडरशिप जो आयोग के लेवल पे बैठती हैं, आपकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, अगर हम एक चेंज कर सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और वो हो सकती है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस इंडियन मेडिकल सर्विसेज वेयर दीज डॉक्टर्स हु आर सिटिंग amongst you, the doctor and these doctors who are qualified MBBS, qualified BAMS, qualified MDs, they should come and opt for the administrative services. Right? And when they will become the policy makers, they will make all the change. Very, very valid point. Dr. Mehta. मैं बड़ी विनम्रता से माहूरकर जी से आई वुड लाइक टू डिसएग्री विथ हिम। मेरे पास आपकी बुक भी है, मैं आपका काम भी जानता हूँ, तो बड़ी विनम्रता से आई विल डिसएग्री विथ यू सर। डॉक्टर्स आर नॉट सैक्रिफिशियल लैम्स। हम लोग चूज करते हैं मेडिसिन बिकॉज अगर आप मेडिसिन में टिक रहे हो, मुझे 17 साल लगे टू फिनिश माई एजुकेशन, 17 ईयर्स। द ओनली वे मैं टिका रहा डिस्पाइट एवरीथिंग, मैंने विलेज सर्विस करी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, 9 घंटा दिन में, पानी नहीं आता था 4 घंटा दिन में, इट वॉज वेरी हॉट, वी हैड ऑल अदर इशूज, स्नेक्स वगैरह सब कुछ था, बट आर पैशन एंड आर वॉन्ट टू सर्व। बट जब हम रूरल सर्विस की बात करते हैं कि भाई अब मेरे 17 साल हो गए, आई सैक्रिफाइस माई एंटायर यूथ, माई फ्रेंड्स वर हैव मेड सेविंग्स, उनके घर हो गए, उनके खानदान हो गया, सब हो गया, आई एम स्टार्टिंग माई लाइफ। सर आप हमें इंसेंटिवाइज कीजिए, आप टीचर्स को इंसेंटिवाइज कीजिए, आप रिसर्चर्स को इंसेंटिवाइज कीजिए। इट डजंट हैव टू बी ओनली मॉनेटरीली। Monetarily today is unfortunately one of the biggest drivers of society today. We are a capitalist economy, we are not socialist despite what people say. There are other metrics that you can come up with where we can be, where even someone like me who will say मैंने बहुत साल सर्विस कर ली, मैंने बहुत साल पैसा कमाया, अब मैं गांव में जाके करूँगा।
but there has to be some infra for it. मैं ज़्यादा टाइम ना लेके डॉक्टर साहब की बात में कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैंने अपने 32 साल के प्रोफेशन में डॉक्टर्स के साथ ही काम किया है। आई वर्कड विद वेरी क्लोज मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर्स। अभी बात हुई कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज आएगा, हर स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस आएंगे। मेडिकल कॉलेज व्हेन वी से इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, we allot a land, we create a building, we put up the equipment there, but the most critical part of medical education is the professors, the teachers, right? And those teachers are not available, unfortunately. Now the private colleges all over the India are adopting those retired professors who retired at the age of 60 from a government medical college. Now they can work till 65 years age, and there are very, very efficient, prominent, maybe a person who is sitting left to me would like to come into the teaching profession, but we have to make it a viable. We have to make it attractive. How we can do that? One line answer. We have to make our system flexible. We have to give him the option that, okay, gentlemen, okay, doctor, you work for 8 hours at your own. You earn money. You have worked 17 years. You have studied 17 years. You have given your blood and sweat to this profession. But give 4 hours teaching to my medical college. He will happily come. And he will happily come and accept that honor. We are not flexible at our systems. In many states, I don't know about much, but in many states, like in PGI Chandigarh, a professor cannot do a private practice. Why can't? Allow him to private practice for 2 hours. Let him work for 10 hours in the medical college, and you will see that many professors will come forward, and we will have wonderful faculty all over India. Thank you so much to all of you, Uday ji, Dr. Mehta, Ruby ji, Dr. Shah, for this very interesting session.